अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाएंगे कि थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में एक शख्स रफ़ाकत अपनी बीवी को मनाने के लिए जाता है। जब वो मानकर उसके साथ आने को तैयार नहीं होती है तो वो मुबैना तौर पर वहाँ पर खुदसोजी कर लेता है। लेकिन घर वालों का ये मौक़िफ़ है, अहले खाना का ये मौक़िफ़ है कि उसने खुदसोजी नहीं की बल्कि ससुराल वालों ने उसको जलाकर मार डाला। ये कहानी है क्या, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। रफ़ाकत की मौत किस तरह से होती है ये तो फैसला आने वाले वक्त में होगा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। जो क्लोज सर्किट फुटेज एक मंजर आम पर आती है प्रोग्राम में, सबसे पहले हम आपको वो दिखाते हैं कि किस तरह से वो क्लोज सर्किट फुटेज में एक शख्स दिखाई देता है, वो कि उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अपने ऊपर वो पेट्रोल छिड़कता है और फिर आग लगाता है और वहाँ से भागता हुआ जाता है। शदीद ज़ख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। 80% जल जाने के बाद वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला रहता है। फिर आखिरकार उसकी मौत वाक़या हो जाती है। ये क्लोज सर्किट फुटेज क्या कहती है, सबसे पहले ये देखिए। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि थाना फैक्ट्री एरिया का जो मामला है मुबैना तौर पर एक कत्ल का मामला है, खुदसोजी का मामला है, जिसकी क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आती है। और बीवी के साथ नाराज़गी का मामला था और जो लवाहकीन है मकतूल के, पहले वो बुरी तरह से ज़ख्मी होता है और उसके बाद जो है उसकी हालत कैसी होती है, किस तरह से वो आखिरी बयान पुलिस को अपना देता है, ये सारा कुछ हम उनके लवाहकीन जो है मकतूल उसकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। भाई भी है और बहन भी है और मुकदमे के लिए इंदराज के लिए दरख्वास्त दी गई है, वो भी भाई की जानिब से दी गई है। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम हैदर जमान है। हैदर जमान साहब, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ। ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ। ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਰ ਰਫਾਕਤ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਨਾਮੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਿਆਜ਼ੀ ਚੌਂਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੈਣ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਬੀਵੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ, ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨੂ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਭਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੁਲਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ। 5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਕ ਸੈਫ ਨਾਮੀ ਡੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ, ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸਹੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਤਕੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਰਫਾਕਤ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਾਂ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ
ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜੋ ਵੀ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲੇ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਰਫਾਕਤ ਲਈ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਪਰ ਕੱਲਾ ਆਈ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 2 ਵਜੇ ਜਾਂ 2:30 ਵਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਲਾਹ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਸਰਾਲ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਸਸਰਾਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੱਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ। ਅੱਛਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ? ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾੜਤਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਸੜਿਆ ਸੀ, 80% ਸਾੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਨੇ, ਭਾਈ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ, ਚਿਹਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਤਾ। ਜਨਾਬ ਹਸਪੀਟਲ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੀ 1.5 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। 80% ਜਲ ਚੁੱਕਾ। 80% ਜਲ ਚੁੱਕਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। FIR ਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਲੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ FIR ਕਰਾਉਣਾ? ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅੰਬਰ SI ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ID ਕਾਰਡ, ਥਾਣਾ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। SHO ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ASP ਮੈਡਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਕਿਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਂਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਾਨੋ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਨਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਆਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ ਚ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ 302 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ जनरल हॉस्पिटल से। ठीक है, साढ़े जो सीसीटीवी क्लोज सर्किट फुटेज है उसमें एक शख्स को आग लगी है, वो हम टेलीविज़न स्क्रीन पर पहले भी दिखाई है और दोबारा भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें चेहरा नज़र नहीं आ रहा। यकीनन अगर ये क्लोज सर्किट फुटेज सामने आई है तो इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए, और अगर इनको शुबा है, शक है या इनको यकीन है इस बात के ऊपर कि उसे भाई इनके को कत्ल किया गया और कत्ल करने के लिए उसे घर बुलवाया गया। पहले 7 बजे का टाइम था, फिर 1 बजे बुलवाया गया। तो ये मामला है क्या? यकीनन पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद ही तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे कि मामला है क्या था। प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे इसमें कि पुलिस का मौक़िफ़ भी शामिल करें। अब बहन है मकतूल की हमारे साथ, जो खुदसोजी का मामला सामने आया, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। माइक दो। रफाकत ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ? ਜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਮੀਰ ਸੀ, ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ? ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਰਫਾਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਰਫਾਕਤ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਣੇ ਤੇ ਨਾਨ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਣੇ ਨਾਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ? ਜੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਕੋ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੀ ਟੋਰਾਂਗਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਗੋਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਬਿਨ ਪੁੱਛੇ ਆਂਡੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਂਡੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਆਂਡੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਉੱਥੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਬੀਵੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਣ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਕਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਕਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਕਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਰਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ मैं क्या भाई उठ चल चलिए, मेरी अम्मी को गाले कटे, मेरे भाइयों को गाले कटे, मेरे बाप मरे को गाले कटे, मेरी माँ मरी को गाला कटे। मेरा सिर्फ बर्दाश्त की फिर भी बर्दाश्त की। मैं उठन लगी तो मेरा भरा कहता नहीं असी फौजिया लैके जाना नाल। फिर मैं चुप गई, फिर अंदर चला गया, राइफल कट ली उन्हें, कहता असी गोली मार देनी मैं तेरिया लत्तां च। और बुढ़ी ने ते ओदी भैन ने फड़ के ते कहती नहीं गोली नहीं मारनी, इन्हू इन्हू चितरा ना मार। भाई मैं अपना दुपट्टा ओदे सोने दे पैरां थल्ले रखिया कि साडा भरा दा घर ना साड़ोएगे, इहदा घर बसण दो। कोई क्या भैनां नहीं इंज करदियां। मेरे भरा साले दे पैरां थल्ले रखिया दुपट्टा। भाई मेरी भी इज्जत है किसी, मैं अपने भरा दे खातर, अपने भरा दे खातर पैरां ते ओदे दुपट्टे सट्टे ने अपने, पर उन्हें फिर भी नहीं किया। फिर भी जो जाता रहा करते रहे ने, बस ज्यादती करते रहे, मारते रहे, कुटते रहे, साढ़े तो चोरी जाता रहा। फिर मैं आखिर फिर किसी 4 बंदे दे नाल मेरे मामू होरी जाके नूं लैके आए मना के टोरी। फिर साल बाद फिर इन्हें वही ड्रामा किया। साल बाद फिर आया, आए घर आया, आके मेरे भरा दे हत्थी पे छोटा बच्चा था जड़ा नस गया उधर, कहता पुप्पो पुप्पो मेरे पापा को मेरा बाबू मारन दिया। मैं गई आई ये भी मेरा भरा भी तोड़ के उत्ते गया, मेरे भरा दे हथ जले हुए सी, मेरे भरा दे हथ जाल दे सलाह दी बुढ़ी ने पहले लोग ना साड़ते सी। मेरा भरा इन्ना गरीब, मैं कहा तेरे हथ की, उन्हें कहा बाजी मैं गरीब हो गया था मेरे सोरे मैनू मार देने। ऐसा तो नहीं है कि वो दिल बर्दाश्त होया है? भाई मैनू नहीं पता, मैनू इंसाफ चाहिए। मेरा भरा बहुत उन्होंने जालम किया मेरे भरा ना, चीज दी है मेरे भरा नू, मैनू इंसाफ चाहिए बस। असी ओदी खातर जो जो कहता रहा असी करते रहे, असी कभी उन्होंने मामले च नहीं साए ओदे किसी च। मैंने कहता बाजी की करना है, मैं भाई ने 3 साल अपने भरा नू नहीं बुलाया। मैं कहा तुसी खुश बसो, साडे भैन भरावां ने नहीं बुलाया, असी उन्होंने कभी थड़ा नहीं सी चढ़े, कभी किसी ने उन्होंने कलाम नहीं सी कीती, असी डरते उन्होंने बच्चों नू नहीं सी कभी बुलाते कि किते बच्चों नू ना मारन ला पड़े बुढ़ी ओदी। ठीक है, ये थी जी एक बहन की फरियाद, और जो इसने अपने आँखों से देखा कि इसके भाई के ऊपर क्या जुल्म सितम होते रहे, जो इख्तलाफात चलते रहे, उसकी वजह माजी में जो कुछ होता रहा, ये उसकी तफसील बता रही थी। इंसाफ के तलबगार है पूरा ख़ानदान। इस ख़ानदान से जुड़े दीगर भाई और रिश्तेदार क्या कहते हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। रफ़ाकत का दूसरा भाई
वो भी हमारे साथ, और एक ममानी हैं, ये अपने प्यारे के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या इख्तलाफात की वजह ये बयान करते हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाई की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? माइक करीब करो। मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है। रज़ाक भाई, जी जी। रफाकत ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ? छोटा भाई है मेरे तो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ऐसा? मामला ये क्या हो रहा है, मैं अपनी मामा को रोका था कि ये तलाक याफ्ता हो रहा था, इससे शादी ना कराओ उसके। मेरी मामा ने कहा कि मैं इसके नेकी कर रही हूँ, चलो इनको थोड़ा सा सब्र मिल जाए, कभी हमारे नेकी मिल जाएगी। ये तलाक याफ्ता हो रहा था, शायद किसी दुख से ही, किसी परेशानी से कुछ तलाक होगी। और हमें मेरी माँ ने एक बात नहीं मेरी मानी। जब तक तो उन्होंने देखा कि लड़के के पास पैसा था, अच्छी शोहरत थी, इज्जत थी, सब कुछ था। फिर उसके बाद 3-4 साल गुजरे हैं, उसके पास पैसा नहीं रहा। वो भी पैसा इन लोगों ने खाया। कारोबार करता था? कोई कारोबार करता था, कबाड़िया का कारोबार था। इन अच्छा लोगों ने कमा लेता था? हाँ, अच्छा पैसा, रोजगार अच्छा था, अच्छा बहना खिलौना था, अच्छे लोगों में बैठता था, सारी अच्छी फीस थी। ठीक है। जब से इस लड़की के साथ शादी हुई, उसके बाद 4 साल गुजरे। 4 साल तो ये के लड़की बाद पहले तलाक याफ्ता थी? पहले तलाक याफ्ता है लड़की ये। तो भाई आपके की पहली शादी थी? भाई मेरे की पहली शादी है। अच्छा। उसके बाद 3-4 साल गुजरे हैं, इसके पास कोई कारोबार में ऐसा मसला बना, उसने हमें नहीं बताया। जो इसका भाई दिल नवाज है, जो उसके बाद उसने जगह ली उधर। ठीक है। जब जगह ली, उसका कारोबार नीचे नीचे डाउन चलता रहा। घर से पैसा भी, घर से सीमेंट वगैरह जो कुछ भी इसने अपने खुद से खरीद के उसके घर में लगाया। आपके भाई ने? हमारे भाई ने कम से कम 8-9 लाख रुपए की मालियत होगी जिस वक्त उसने लगाई। ठीक है। ठीक है। उसने यही सोचा कि चल मेरी थोड़ी सी चीज़ बन जाएगी, मेरी बेगम की बन जाएगी, हम की बन जाएगी, पर हमें उसने बीच में नहीं आने दिया। ठीक है। उसके बाद वो जैसे उसने पैसा लगाया, उन्होंने सोरों ने ज़्यादती करना शुरू कर दी। ज़्यादती करके वो थोड़ा सा पैसे के नीचे आ गया, लोगों ने जिनके देने थे उनके। उसके बाद जैसे ही उसका थोड़ा सा पैसा लोगों के देने थे, लोगों ने भी आना, झगड़ा करना, ये वो करना इनके साथ। इनने भी बाद में टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि उसके हालात माड़े हो चुके थे। अब ना वो इसको कारोबार ख़राब हो गया, डाउन हो गया। डाउन हो गया। ना इस लड़की को बाहर लेके वो शॉपिंग करा सके। अच्छा। ना इसको बैग लेके जाके बर्गर खिलाए, ना शॉपिंग करे कहीं जाके, ना कहीं दावतें खाए। इतना डाउन हो चुका था वो। अल्लाह का शुक्र हुआ, थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता इसने फिर अपना सेटअप सेट किया। ठीक है। दोबारा जब सेटअप ठीक हो गया, पैसे कमाने लग गया, फिर फिर इख्तलाफ भी इख्तलाफ किस बात पे? बस यही क्या, हमें ना मिले, माइक करीब करें। हमें ना मिले, भाइयों को ना मिले, बहनों को ना मिले, किसी को ना मिले। आता ही आता फाई हर के पास चुगली गाड़ी लगानी शुरू कर दी, रात को खामद को लगानी, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर सब दिया। भाई इकट्ठे रहते थे? हम सब भाई इकट्ठे रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई इतना मसला नहीं होता। चारों भाई बच्चे कितने थे? उसके बच्चे 3 हैं। बेटे? 2 बेटे 1 बेटी है। शादी को कितना अर्सा हो गया? 13 साल हो चुके हैं। 13 साल हो चुके। अच्छा। तो कभी ख़ानदान वालों ने इस मामले को ख़त्म कराने की कोशिश कई दफ़ा कराई। ख़ानदान के मेरा मामा गया है, मेरी मामी गई है, उनके सामने मेरी बहन गई है, मेरा अपन भैया गया है, कोई कितने ख़ानदान। जब हम जाते हैं ना, जब हम जाते हैं तो भाई जाते हैं, भाइयों को कहते तूने भाइयों को नहीं लेके आना, क्योंकि भाई ऐसी तशद्दुद और ऐसी चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। मार खाता रहा उनसे? बस यही है कि मार खाता रहा। उनको कभी कोई शर्त रख लेनी, कभी स्टाम्प की रख लेनी, कभी उनको तशद्दुद करना, कभी उसको ऐसा ऐसा गलत मैनेजमेंट इस्तेमाल करनी, गाली गलोच, ये चीज़ें रैपले। भाई उसके साथ रहना चाहता था? भाई मेरा रहना चाहता था, जिसकी वजह से हम मजबूर थे कि हम कुछ नहीं कर सकते थे कि हमारा भाई ना हमसे नाराज़ हो, जिस वजह से हम चुप कर जाते थे कि हमारे भाई का घर बस जाए बस। आप कुछ कहना चाहते हो? इधर देखो, बताओ। अब कहना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल मैंने सब देखी है, मेरे भाई को मारा गया, जलाया गया। 7 बजे का टाइम था, मेरे साथ उसने रात को बात की है। ठीक है। ठीक है। मैंने 7 बजे जाना, मैंने कहा भाई तुम जाओ 7 बजे, मैं आपके पीछे खड़ा हूँगा। इन्होंने 1 बजे बुला लिया। 1 बजे बुलाकर मुझे उसने नहीं बताया।
ये मुझे बता देता तो मैं 1 बजे उसके पीछे होता, और 7 बजे उसने मुझे बताया भाई मैं 7 बजे उधर जाना है, पर मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। 7 से मुझे केले में बुला रहे हैं बाद में। मैं कहा भाई तू जा, मैं तेरे पीछे हाँ। मैं तो वापस कला नहीं चाहता, पर मैनू की पता नहीं उन्हें 7 बजे तो 1 बजे बुला लेना है। भाजी मैनू कॉल भी नहीं की थी जिस वक्त वो गरीब आदमी ने कॉल आई, अस्पतालों मैनू कॉल आई, महल्लेदारा दसिया, इतना नहीं उसको बताया गया कि फ़ोन उसको दे दें कि भाई कॉल करके किसी को बता दे। फ़ोन भी उसको उन्होंने छीन लिया। ठीक हो गया, ये बात करवाएं अपनी ममानी से माइक देन को। आप तो ज़ाहिर है आपके शोहर इनके मामू हैं जी। तो आप लोगों ने भी कोशिश की कि नौबत इस तरह ना पहुंचे, और वो आपने वीडियो देखी है जिसमें जी। वो आग लग रही है, जी, भाग सारी रहा है वो, देखिए, सब तो देखिए। क्या लगता है आपको? अभी मुझे समझ इस बात से नहीं आ रही हम लोगों को, जो उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा है ना, जो माइक मुंह करीब नज़र कर ले। जी मुंह नज़र आए तो हमें पता चले जो हमारा ही बच्चा है। क्या पता है अभी हमारा बच्चा है या किस तरह का है, कौन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। ये लोग कह रहे हैं उसके ससुराल वाले ये वो ही है, रफ़ाकत है, कुछ पता नहीं है वो रफ़ाकत है या और कोई है। तो मैं थोड़े दिन पहले आई थी इनके घर, उस वक्त उसकी बीवी इधर ही थी। ठीक है। नीचे आई है, पहले नहीं आई मिलने, मैं रात रही हूँ, जब जाने का टाइम हुआ उस वक्त आई है मिलने। तो मैंने कहा तुम नीचे क्यों आई है, तो वह कहती है ये सारे जहल लोग के जहलियत है इनमें, ये सारे जहल हैं। मैं कहा तुम क्यों खफा होकर गई हो, पहले 2-3 दिन पहले वापस आई है ना, मैं तुम क्यों इस तरह करती हो, तुम अपना घर क्यों नहीं बसाती हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आगे से मुझे कहती है मैं क्या करूं इनके घर में रह के, मैं नहीं रहती इनके पास, आज इसके घर ये इतना गंदा, इससे मुझे बदबू आती है। मैंने कहा उस वक्त बदबू नहीं आती जिस वक्त इसके पास पैसे थे, जिस वक्त इसके पास इसके बच्चे तुमने पैदा किए, अब वो गरीब हो गया, अभी तुम्हें उससे बदबू आती है। मुझे कहती है कि आगे से सब आप लोग सब एक जैसे ही हो। मैंने कहा बेटा मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं इतने दूर से आप लोगों को मिलने आई हूँ। मैं एबटाबाद। हाँ जी, मैंने कहा मैं आप लोगों से लड़ने नहीं आई हूँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ, अपने बच्चों से, इनको सबसे। तो मैं जा रही हूँ अपने घर, तो तुम अपने घर में खुश रहो, इस तरह की हरकतें ना करो। उसके बाद फिर पता चला है जो 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं गुजरे तो वो फिर चली गई है ना, फिर चली गई है। तो फिर उसने ये लड़ाई झगड़े, ये इस तरह की बातें, ये खाम खा बस उस लड़के के साथ लड़ाइयाँ करती है। एक नान चने से वो खफा होकर घर गई है तो लड़के को कब्र में जाके डाल दिया है ना। ये आपसे सर ये मैं गुजारिश करती हूँ जो आप ये काम करें, इनसे ये पूछें आप, जो आपने पंचायत 7 बजे की रखी हुई थी तो 1 बजे बुलाने का और अकेला बुलाने का क्या तुक बनता था उसको? अपनी मर्जी से तो नहीं गया था वो? नहीं, फ़ोन आई है उसके, वो ड्यूटी पे था, उधर फ़ोन आई है, उस मालिक का ख़ुद मोबाइल ले, वो मोटरसाइकिल सा लेके आया है, साथ उसका छोटा बच्चा भी था, उससे भी आप पूछ सकती हैं। उधर फ़ोन आई है, उस फ़ोन से क्या नाम है वो गया वे उधर जाके, तो क्या नाम है उधर जैसे गया है उधर पता नहीं फिर उन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया, वो अल्लाह बेहतर जानता है, उस चीज़ का हमें नहीं पता। मगर हम लोग ये चाहते हैं ना, जो उन्होंने 1 बजे 7 बजे की पंचायत रखी हुई थी तो 1 बजे बुलाने का कौन सा उनका वो था। ये यतीम बच्चे हैं, आप मेहरबानी करके आप आगे हमारी ये रिक्वेस्ट पे जाएं जो इनके साथ इंसाफ हो, इनको इंसाफ मिले, है ना। ये बहुत परेशान है, इनके ना कोई इनकी बात सुन रहा है, ना इनकी कोई आगे केस कर रहा है, ना वो लोग भले फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उल्टे बातें कर रहे हैं, लोगों से हम सुन रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं। जो लोग उधर से आते हैं इधर दुआ करने, इधर आके बातें करते हैं, जो हम लोग अजीब अजीब बातें सुनते हैं उनकी, तो बड़ा दुख होता है कि हमारा बच्चा मार दिया, दूसरा इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। अहले खाना और रफ़ाकत के दोस्त का क्या कहना था ये तो हमने आपको सुनवाया। अब रफ़ाकत का बेटा वो हमारे साथ है, जब ये वाक़या पेश आता है उस वक्त भी ये अपने वालिद के साथ था। इससे जानते हैं इसने अपनी आँखों से क्या देखा, और जब इन दोनों की, इसकी माँ भी और बाप में जब लड़ाई झगड़ा होता था तो क्या मामलात होते थे, ये कुछ हमें बताना चाहता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में पढ़ते हो। तो क्या हुआ?
वो ना पिछली दफ़ा मम्मा पापा की लड़ाई हुई, मामू को बुलाया, मामू ने पापा को तवा मारा है बाजू पे। तो फिर अंकल दीता भट्टी को बुलाया, अंकल आया, अंकल ने सुलह कराई, फिर वो चले गए। फिर अगली दफ़ा हम लोग कह रहे थे अपने नान खाने हैं, पापा कहता मेरे पास पैसे नहीं आए थे। तो फिर वो मम्मा कहती नहीं बच्चों ने नान खाने तो ला के दे। तो ऐसे ही बहस चल रही, तो नाना अब्बू आए हैं सीढ़ियों से ही वापस चले गए। और आगे जाके रोड पे फ़ोन पे इतनी गालियाँ निकाली पापा को, दी सारे ऐसे कुछ। तो फिर पापा ने अगले दिन, वो उनकी शादी थी कोई नाना अब्बू घरों की, वहाँ पे पापा ने गिफ्ट भेजा है। दूर थी इस वजह से पापा जा नहीं सके, तो पापा ने गिफ्ट भेजा है। तो उधर से फिर पापा काम पे चले गए हैं। और फिर पीछे से फ़ोन मम्मा ने किया कि बच्चों ने उधर जाना है, क्या नाम है, नानो घर। तो ना वो कहते, पापा कहते अगले हफ्ते चली जाई, पूरा हफ्ता रहे, रात को मेरे पास आ जाए, बाकी फिर तू चला जाए, फिर तुम चली जाना। फिर वो मम्मा कहती मैंने नहीं, मैं चली जाऊंगी, बच्चों को मैंने अभी भेजना भी। पापा कहते बेटों को दोनों को भेज दे और मेरी धी को ना भेजना। वो ना पिछली दफ़ा उन लोगों ने मेरी धी को गालियाँ निकाली हैं इतनी बुरी, तो इस वजह मैं पागल उस घर में अपनी बेटी को भेजूँ। तो वो मम्मा कहती मैं जा रही हूँ फिर, हैं। तो मम्मा ने मेरे छोटे भाई को लिया, मम्मा चली गई। तो फिर मैं मम्मा के पीछे गया हूँ, मम्मा को कहा मम्मा मैं भी आऊँ। मुझे नहीं पता था मम्मा किधर जा रही। मैंने कहा मम्मा मैं भी आऊँ, मम्मा कहती भाग जाओ घर। मैं फिर घर आया हूँ, पापा आए हैं, पापा रो रहे थे। फिर मैंने कहा पापा मम्मा किधर गई। पापा कहते मम्मा नानू घर चली गई हैं। फिर पापा वगैरह उधर गए हैं। पापा फिर आए हैं, पापा की बाजू से खून निकल रहा था। किसने मारा था? ये नहीं पता। पापा कहते मैं गिरा हूँ, हैं। तो पापा कहते मैं गिरा हूँ। तो फिर रात हुई है, मिनाइल अपी और मैं सो रहे थे, पापा अकेली चरपाई पे थे। फिर मैं उठा हूँ, मैं वॉशरूम करने का पानी पीने के लिए उठा हूँ। फिर मैंने देखा पापा रो रहे थे, मैंने पापा को चुप कराया। पापा कहते मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मेरा सिर दर्द हो रहा था, हैं। फिर मैं ऐसे ही पीछे मैं सो गया। फिर पापा सुबह गए हैं। फिर मैं पापा को घरों को अदालत में बुलाया गया, जेल में। फिर वो पापा गए हैं, पीछे से कोई आया, मेरा मामू घर आ, मिनाइल को मिनाइल को गाड़ी पे बुलाया और ले गए। तो पापा इतने परेशान हुए हैं। फिर पापा घर आए हैं सारे वहाँ से। तो हम ढूंढने गए हैं, इतनी दूर था, फिर नहीं मिली। फिर उनको फ़ोन किया, कहते वो आ गया हमारे पास खुद, लोगों ने पहली दफ़ा रात को। तो पापा कहते अच्छा मैं आ जाऊँगा 7 बजे, हैं। तो वो कहते अकेला, वो पापा ने आके ताए को बताया, ताए ने कहा अच्छा मैं भी जाऊँगा तेरे साथ, हैं। तो फिर सुबह हुई है, सुबह फ़ोन आया पापा को कि नानों ने किया कि 1 बजे आना है। तो फिर मैं तेरी सुलह करा देती हूँ, आ जाई, मैं तेरी सुलह करा। फिर हम जा रहे, पापा को काम से छुट्टियाँ हो गई थी, कारखाना बंद कर जा रहे। मामा और पापा बहुत लड़ते थे। पहले नहीं लड़ते थे, जब से मेरे पापा ने ना मेरे मामू पे अपने सारे पैसे खर्च किए हैं। मेरे पापा पहले अमीर थे, फिर गरीब हो गया। फिर मम्मा और पापा के झगड़े होने शुरू हो गए थे। गरीब हुए हैं तो फिर मामा लड़ना शुरू हो गए, पहले नहीं लड़ती थी? पहले नहीं लड़ती थी। अच्छा, तो आपके मामू और नाना भी पापा को मारते थे? मारते हैं। मामा भी मारती थी? मम्मा मारती है। पापा को मारती थी? तो पापा नहीं मारते थे? पापा ने एक दफ़ा इस तरफा ना वो गलती से कुछ ऐसे ही पीछे किया, जब मम्मा थप्पड़ मारने लगी थी तो मम्मा की कमर पे सेफ लग गया। तो मम्मा कहती, मम्मा इतना रोई, मम्मा कहती मेरी दर्द हो रही है ऐसे। तो फिर मम्मा ने ना पापा ने मम्मा को दवाई ला के दी है, सारा कुछ किया है। वो मम्मा को कहते, वो डॉक्टर के पास गए, कहते इसको कुछ नहीं हुआ, बस इसके पट्टों में कमज़ोरी है कब से, हैं। वो कब से थी, पिछली दफ़ा की, हैं। तो वो पापा कहते अच्छा, पापा ने 1000 की दवाई लाई है। फिर घर आए हैं, मम्मा को दवाई दी है, फिर सुलह होगी। फिर अच्छी तरह हम बैठे हैं। ईद के दिन हुई थी लड़ाई, ईद के तीसरे दिन। फिर ईद के 6वें दिन पापा ने काम पे जाना था, पापा ने उनको गिफ्ट भेजा। फिर पापा गए तो मम्मा भाग गई। तो फिर
वो पापा गए हैं पीछे, पापा को उन लोगों ने मारा है। पापा ज़्यादा अच्छे हैं या मामा? पापा। और आपकी बहनें? एक बहन है? एक बहन है, एक और भाई है छोटा। छोटा भाई है। आप बड़े हो सबसे? नहीं, मेरी बहन सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। तो अब पापा तो नहीं रहे दुनिया में, अब मामा किससे लड़ेंगे? कुछ और कहना चाहते हो? क्या होना चाहिए? मेरे मामू जो उनसे है ना, घर में आते हैं, मेरे पापा को लड़ाई करते हैं, चाहे डांट के जाते हैं, और फिर पापा कुछ नहीं कहते। पिछली दफ़ा मम्मा ने ना पापा को इतनी सख्ती से कहा उनका घर बना दे, फिर पापा कहते अच्छा मैं बना दूंगा। उनका घर बिल्कुल फजूल था, नीचे गिरा हुआ लेंटर हो गया, तो पापा ने सारे मिस्त्री भी लगाए हैं, तो पापा के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, थोड़े से रह गए, फिर पापा ने खुद ईंटें लगाई हैं, ईंटें ख़त्म हो गई, सीमेंट ख़त्म हो गया, पापा ने ईंटें अपने पैसों की मंगवाई और सीमेंट भी अपने पैसों का मंगवाया। तो वो मम्मा ने कहा था पापा को, इस वजह से फिर पापा के मामू पास का घर बनाने के लिए मामा ने कहा था? हाँ। ठीक है। ये वो बच्चा है मासूम जो अपने माँ बाप की लड़ाई को आंखों से देखता था, किस वजह से लड़ाई होती थी, माँ किस बात पे नाराज़ होकर घर छोड़ के चली जाती थी, और बाप हमेशा किस तरह से मनाता था। यकीनन पुलिस जो है इस मुकदमे के लिए तमाम तफ्तीश के पहलू जो हैं वो मुकम्मल करेगी कि मकतूल जो है, मरने वाला जो है रफ़ाकत, उसकी मौत किस वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा, फिर तमाम शवाहिद जो हैं वो लिए जाएंगे। जो क्लोज सर्किट फुटेज है वो कई तरह के सवालात पैदा करती है। मुबैना तौर पर खुदकुशी का मामला जो है वो लगता है, लेकिन हतमी तौर पर इसका फ़ैसला पुलिस करने के बाद FIR का अंदराज करेगी। रफ़ाकत जो मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी करता है, लेकिन घर वालों की जानिब से ये कहा जाता है कि उसको घर बुला के आग लगाई गई। अहले खाना लवाहिकीन क्या कहते हैं और उसके बेटे ने क्या मासूमियत में हमारे सवालों के जवाब दिए, वो भी हमने आपको दिखाए। दोनों मियाँ बीवी का इख्तलाफ था, ये तमाम लोगों की गुफ्तगू से बातें साबित होती हैं कि मियाँ बीवी में घरेलू नाचाकी काफ़ी अरसे से चल रही थी। उसकी चाहे वजह पैसे की कमी थी, और जब शादी हुई उस वक्त पैसे की फरामानी थी। और अब हम माहिर नफ्सियात हैं कि क्या ज़हनी तौर पर मियाँ बीवी में इस तरह का इख्तलाफ हो तो क्या जो एक वीडियो मंजर आम पर आई है कि शोहर मुबैना तौर पर खुदकुशी भी कर सकता है, खुदसोजी भी कर सकता है, या घर वाले, लड़की के घर वाले उसको घर बुलाकर उसको आग भी लगा सकते हैं। बिस्मा आसिफ हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या दोनों मियाँ बीवी के इख्तलाफात एक ऐसी बात पे कि पैसा जो था वो अब नहीं था, पहले हालात माली बहुत अच्छे थे और अब माली हालात जो थे वो ख़राब हो गए थे, तो क्या बीवी ऐसे हालात के बाद शोहर को तंग करती है, शोहर के साथ झगड़ा करती है, और क्या घरेलू नाचाकियों की वजह भी पैसा बन सकता है? बहुत शुक्रिया बिस्मा साहिबा आपका, तमाम केस के हवाले से आपको तफसील बताई। बिल्कुल। एक वीडियो है जो अभी तक FIR, फ़िलहाल जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसकी FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। पुलिस को इस बारे में ये शुबा है कि शायद रफ़ाकत जो मरने वाला था उसने खुदसोजी की है। तो घरेलू नाचाकी थी वजह, डेफिनेटली घरेलू नाचाकी की वजह क्या हो सकती है मियाँ बीवी के दरमियान? अच्छा, उसकी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई सिंगल चीज़ नहीं। जैसे आपने बहुत हाईलाइट की फाइनेंशियल एक क्राइसिस है, ठीक है, ये एक बहुत रूट कोज है आपकी इश्यूज़ की, क्योंकि फाइनेंशियल आपका अगर बर्डन होगा तो वो खाली उनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, जैसे आपने बताया उनके बच्चे भी हैं और उस तरह से अब उनकी नीड्स तो वहीं के वहीं हैं, ज़रूरतें वहीं हैं। जब प्रेशर एक वाइफ पे आएगा तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली हस्बैंड पे भी जाएगा, ठीक है। अब वो चीज़ आपने ये मेंशन की कि वो काफ़ी सालों से उनकी चीज़ चल रही थी, सो इससे पता चलता है कि आपस में जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं लैग कर रही है, क्योंकि बहुत दफ़ा फाइनेंशियल इशूज़ के बावजूद भी है लोग अपना ताल्लुक बड़ा अच्छा चला रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अब अगर आप इमोशनली या जज्बाती तौर पर एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुक में नहीं है तो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे या माली हालात तंग होंगे तो चीज़ें ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। अब जब मेंटली स्ट्रेस आएगा तो ये स्ट्रेस जो है ये लीड कर सकता है डिप्रेशन को भी,
ठीक है। अब डिप्रेशन बहुत दफ़ा जो है वो लीड करती है सुसाइड अटेम्प्ट करने में, मतलब बहुत दफ़ा जो केसेस आते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के, उसके पीछे स्वेयर किस्म का डिप्रेशन होता है। अब डिप्रेशन ऐसे नहीं कि वो 2 दिन या 1 साल में जो है इस हद तक पहुंच गया कि आप खुदकुशी कर लें, वो सालों से आहिस्ता आहिस्ता चल रहा होता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको उकसा देती है, ट्रिगर कर देती है, वो आपके माली हालात या आपके जो हैं शादी की ज़िंदगी में जो आपने बताया कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो चीज़ उसको ट्रिगर कर सकती है डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इस केस में लड़के के रफाकत के घर वाले, उसकी बहन बड़ी जो है ज़ारो कतार रोते हुए ये हमें बताती है कि हमारा भाई जो था वो बहुत परेशान रहता था। हाँ, और उसकी बीवी बहन भाइयों से मिलने और उनके बच्चों को मिलने नहीं देती थी, तो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ होती थी। फिर दूसरी जानिब जब मरने वाले के 10 साल के बेटे से हम बात करते हैं तो वो बड़े अहम इंकशाफात करता है। वो कहता है कि जब नानों के घर हम जाते थे तो मेरे मामू उसको मारते भी थे, मेरे पापा को मारने वाले नाना भी मारते थे। फिर यहाँ तक उस बच्चे ने इंकशाफ किया कि वो ये बच्चा भी कहता है कि मेरी मामा भी पापा को मारती थी। तो इस हद तक किसी औरत का जाना, फिर वो ये भी बच्चा बताता है कि रात को अक्सर मामा अगर घर से नाराज़ होकर नानों के घर चली गई हैं तो उसके पापा रोया करते थे। अब ये यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं। अब एक चीज़ तक हम देखते हैं, हमने सोसाइटी में सुना है कि आदमी ही औरत को मारा, कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंस है। अब एक औरत मारी है तो ये वो चीज़ है जो कि हम लोग शेम या गिल्ट की वजह से बता नहीं सकते। औरत को मार पड़ेगी तो वो बताएगी कि जी मुझे शोहर मार रहा है, लेकिन आदमी की एक कहते हैं ना मर्दानगी पे क्वेश्चन हमारी सोसाइटी में कि वो तो मार नहीं खा सकते, वो तो मार सकता है। अब वो चीज़ एक आदमी अगर बर्दाश्त करे तो उसके लिए कितनी मुश्किल है, क्योंकि किसी को बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये उसके लिए उसके कॉन्फिडेंस को, उसकी पर्सनैलिटी को कितना ख़त्म करता होगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि 12 साल की शादी है तो ये चीज़ अभी नहीं स्टार्ट हुई होगी, वो शुरू से ही चल रही है, जो बच्चा काफ़ी देर से विटनेस कर रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है, आपकी खुद एतमादी ख़त्म होती है, ये आपकी डिप्रेशन की तरफ जाती है चीज़। और वो चीज़ क्या शो करी कि एक औरत डोमिनेंस की तरफ जा रही है। ठीक है, हमने बताया कि वो हर चीज़ में कर रही है और अपने घर वालों को भी वो बता रही है, तो मतलब ये चीज़ें पीछे से ही चलती आ रही हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि डिप्रेशन में कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे होते हैं, बाहर से लोगों को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन उन्होंने उनके घर में भी बताया कि वो परेशान दिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को, रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसमें देखा जाए तो वाइफ की तरफ से तो वो डोमिनेंस आ रही है, लेकिन हस्बैंड जो हैं वो कहीं ना कहीं अटैच हैं, बॉन्ड में हैं। ठीक है, वहाँ से शो हो रहा है। और वो चीज़ बताई कि अगर वो चली गई हैं तो वो उनको इमोशनली और टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि वो सेपरेशन क्या बता रहे हैं कि अगर आप मेरी नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हो तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो ये एक आदमी के लिए कितना टॉर्चरिंग होगा। ठीक है, तो इसकी जो रूट कोज है वो वायलेंस भी है। अब डोमेस्टिक वायलेंस का सिर्फ और सिर्फ औरतें शिकार नहीं हैं, अब मर्द भी शिकार हैं, जिससे भी चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है यहाँ पे। और वो वायलेंस उसके घर की तरफ से, लड़की के घर की तरफ से भी आ रहा है, तो वो तो डेफिनेटली उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करेगी वो चीज़। बिल्कुल ठीक है। जो बच्चा ये स्टेटमेंट दे रहा था 10 साल का, बड़ा होकर उसकी ज़हनी हालत कैसी रही? बहुत ख़तरनाक हद तक अब वो चीज़ें जाती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो मैं डील करती हूँ, जहाँ पे बच्चे जो होते हैं उन्होंने बचपन से वायलेंस देखा होता है और वो भी फिर एंग्जाइटी में चले जाते हैं, पर्सनालिटी इश्यूज़ में चले जाते हैं, इवन फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो भी लीड करती है आपके लो कॉन्फिडेंस को। ठीक है, और वो फिर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे होते आने वाले, फिर अपनी एकेडमिक्स में, उसके अलावा जब अपनी जॉब में जाते हैं वहाँ पर भी उनको इश्यूज़ आते हैं, फिर जब वो अपने रिलेशनशिप बनाते हैं वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। तो वो इम्पेयरमेंट आपको हर जगह पे नज़र आएगी। अगर एक बच्चे ने बचपन से ही वायलेंस और लड़ाई झगड़ा देखा है तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनालिटी बहुत डैमेजिंग होगी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि एक जो वीडियो है, पुलिस के पास सिर्फ एक ही एविडेंस आया है, फुटेज आई है, क्लोज सर्किट फुटेज है। हाँ। उसमें नज़र आ रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है, उसमें उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा, एक शख्स जो है वो पेट्रोल अपने ऊपर फेंकता है और उसके बाद अपने आप को आग लगा लेता है और फिर भागता है। तो उसमें कोई दूसरा शख्स नज़र नहीं आता। अगर सिर्फ वीडियो की हद तक बात करें तो ऐसा लगता है कि कोई शख्स किसी के घर के बाहर, अगर उसकी बीवी नाराज़गी ख़त्म नहीं कर रही, उसके ससुराल वाले उसकी बीवी को उसके साथ नहीं भेज रहे हैं, तो वो खुद सोजी करता है वीडियो के मुताबिक। इस हद तक लोग चले जाते हैं, मर जा सकते हैं। वो आपकी शो करे कि आप इमोशनली जज्बाती तौर पे इस हद तक वीक हो गए हैं कि आप अपने आप को खुद से नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। अब उसकी शुरुआत वही बात है कि एक लड़ाई नहीं है, ये शुरुआत आपके ख्यालात से होती है, ख्यालात से फिर आपके एक्शन में आती है। बहुत दफ़ा हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ख्यालात तक, उनको ये ख्याल आता है कि हम
डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम खुद को ख़त्म ही कर लें, मैं इतना ही फालतू, मैं इतना ही बेकार हूँ दुनिया के लिए, तो खुद को ख़त्म करने के ख्यालात आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के भी पेशेंट्स होते हैं जो उस पर अमल भी कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने अमल कर लिया, मतलब उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी थी, इतनी जहनी हालत ख़राब थी कि उन्होंने अटैम्प्ट भी कर ली, और हो सकता है कि उन्होंने पहले भी काफ़ी दफ़ा ट्राई की हो लेकिन नाकाम भी रह गए हों, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा उस चीज़ में वो कामयाब हो गए हों। ठीक है, ऐसे घरेलू हालात क्यों बनते हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ता है, हिफाजती तौर पे माँ बाप को, मियाँ बीवी को, जिनके इस तरह के मामला खुदा न खासा हों या ऐसे मिलते जुलते हालात होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कि लोगों के लिए मैसेज? इसमें ये कि जो हमारे जो ताल्लुकात जब ख़राब हो रहे होते हैं वो एकदम से नहीं हो रहे होते हैं, बहुत दफ़ा हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स को अगर कोई लड़की बता रही है, अगर एक लड़का बता रहा है कि मैं उस चीज़ को नहीं बना पा रहा, ठीक है, तो उस पर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं आपने ताल्लुक को बना के रखना है। अगर आप उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसमें एक, अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो एक माहिर नफ्सियात जो होते हैं, ठीक है, वो आपको मैरिटल काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको गाइड कर सकें कि आप अपनी उस कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, कभी वो आपके इमोशनल हो सकते हैं, सो उसमें एक प्रोफेशनल हेल्प लेने में आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खाली आपके लिए डैमेजिंग नहीं है, वो उन बच्चों के लिए भी डैमेजिंग है जो हर चीज़ डेली देख रहे हैं और वही सोसाइटी का एक पार्ट बन रहे हैं। तो आप अपनी शादी की ज़िंदगी पे खाली असरअंदाज नहीं कर रहे बल्कि पूरी सोसाइटी पे असरअंदाज कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सोसाइटी में वो बच्चे देंगे जो ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे, ना कि वो ज़हनी बीमार होंगे। तो इस चीज़ को डेफिनेटली इग्नोर ना करें। अगर ऐसे अलार्म साइंस आ रहे हैं आपके ताल्लुक में तो उसको अलहदगी, या तो उसको पूरी कोशिश करें कि पहले उसको बेहतर करें, और नहीं कर पा रहे तो उसको एक अच्छे अंदाज में अलहदगी कर लेनी चाहिए। रफाकत के घर वाले क्या मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब हो सकेंगे, और क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित कर सकेगी कि उसको वाकई उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाया? इसके बारे में कानूनी माहिर की क्या राय है, ये हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। दो सिनेरियो बात कर रहे हैं, ऑथेंटिक बात ना आपके पास है ना मेरे पास है। उसके लिए यकीनी तौर पर शहादत में इकट्ठे होना होता है, और शहादत इकट्ठा करने के दो मैकेनिज़्म हैं। एक तो मॉडर्न डिवाइसेस का ज़माना है, कोई वीडियो बनी हो, सीसीटीवी फुटेज हो जिसके थ्रू ये पता चल सके कि ये बंदा वहाँ पे मौजूद था, तो ये कोई भी फेल जो हुआ है, आग लगी है या लगाई गई है। हर दो सूरत में पहली बात तो ये वहाँ से ये एविडेंस आ सकती है और ये बात इस्टेब्लिश हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब दूसरी बात आपने की है कि क्या ये कत्ल किया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी वक़ूआ सरज़द होता है और वो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होता है, ऐसे जराइम जिन पे FIR हो सकती है तो उन पे FIR अगर ऐसी कोई एलिगेशन लेके आते हैं तो यकीनी तौर पर हो जाती है। फिर आ जाते हैं जब जलने के साथ FIR होती है तो उस पर जुर्म कौन सा लगेगा, उस पर यकीनी तौर पर जुर्म भी 302 लगेगा अगर डेथ वाक़ई हो गई है। डेथ वाक़ई होने से पहले 435 और 436 का एलिमेंट मौजूद होता है ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात के तहत, लेकिन ये मिसचीफ बाय फायर नहीं रही, ये डेथ हो चुकी है तो ये 302 में कन्वर्ट हो जाता है ऐसी सूरत हाल के मुताबिक। अब पोस्टमार्टम के थ्रू पता चलता है कि आग से जला है या उसकी कोई अंदरूनी या बैरूनी ज़ख्म भी थे, ये बातें पोस्टमार्टम से बाहर आएंगी। तो इसमें दो पहलू मौजूद हैं। आपके सवाल के मुताबिक ये खुदसोज़ी है, अगर उसने खुदकशी की है तो उसके लिए 425 ताज़ीरात पाकिस्तान है, जिसके तहत खुदसोज़ी की कोशिश करने वाले शख्स के ऊपर 425 ताज़ीरात पाकिस्तान की FIR दर्ज की जाती है, और फिर कानून के मुताबिक 1 साल सज़ा या जुर्माना या दोनों हैं। अब दूसरी तरफ जो है, अगर ये 302 हो जाती है और कत्ल का पर्चा दर्ज हो जाता है तो ऐसी सूरत में उम्र कैद या सज़ाए मौत हैं, ये हमारे कानून के अंदर हैं। अब ये दो चीज़ें हैं। पहली बात मॉडर्न डिवाइसेस की मैंने की है कि अगर उस पर एविडेंस आ जाती है तो यकीनी तौर पर FIR नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून अदरवाइज़ कहता है। कानून ये कहता है कि जब भी जुर्म होगा उसकी FIR होगी, फिर तफ्तीश होगी, तफ्तीश में कलेक्शन ऑफ एविडेंस होगी, शहादतों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर इसको हक़ाइक़ पर यकसू किया जाएगा। देखिए, इंस्टिगेशन का हमने पाकिस्तान के अंदर खुदसोज़ी की कोशिश तो जो करता है उस पर तो FIR हो सकती है, लेकिन जिन हालात पे वो करता है उन हालात पे आज तक ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है ना कोई FIR हुई है। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा डायलमा है, ये अलमिया है, इसको एड्रेस होना चाहिए। एक बंदे के ऊपर ये, और
इस केस के अंदर जिस तरह से आपने कहा कि उसका बच्चा है 10 साल का और वो ये कहता है कि मेरे बाप पर मेरी माँ भी तशद्दुद करती थी, तो ये यकीनी तौर पर हम तमाम लोगों के लिए और इस मुआशरे के लिए बड़ी अलमनाक बात है। हमारी ख़वातीन, जिनको हम मशरक़ी ख़वातीन कहते हैं, और उनके ऊपर हम ये कहते हैं कि हया, शर्म और इक़दार की वैल्यूज़ की एक कदगन लगी हुई है। तो अगर कोई ख़ातून इससे बाहर आकर करती है तो वो शरीयत के भी ख़िलाफ़ कर रही है और अखलाकियात के भी ख़िलाफ़ बात कर रही है। और ऐसे हालात में यकीनी तौर पर ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, आपने किसी भी चीज़ को समझना होता है इस तरह के इंसिडेंट में, तो उसमें ट्रैक रिकॉर्ड का देखना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये जो इंसिडेंट्स हैं, बच्चे का कहना है, ये सारी चीज़ें आपको ये कुछ लीड तो देती हैं, रास्ता तो देती हैं कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। हो सकता है उसको कत्ल किया गया हो, लेकिन ये कंक्लूसिव बात उस वक्त तक नहीं है जब तक शहादत के थ्रू ये इस्टेब्लिश ना हो जाए। उस वक्त ये सिर्फ महज इल्ज़ाम ही रह सकता है, महज FIR ही हो सकती है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। और दूसरा, ख़ातून का हस्बैंड को मारना, ये तो चले एक घर की बात थी, लेकिन अगर ख़ातून की फैमिली भी साथ शामिल हो जाती है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यकीनी तौर पर ये समझता हूँ बतौर तालिबे इल्म कानून के कि ऐसे हालात में इंस्टिगेशन की, जिस तरह से हम इमा की बात करते हैं, 109 की बात करते हैं कि किसी के इमा पर कत्ल किया गया था, तो जो इक़दाम कत्ल होता है, कोशिश कोई करता है सुसाइड करने की, इक़दाम अपने आप को मारने की, तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि उन हालात और मुहर्रकात को देखते हुए 109 के तहत उनके जो लोग उकसाते हैं किसी को अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कानून है 154 के तहत FIR होनी है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत। 155 है जहाँ नाकाबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म होगा तो उस पर पुलिस इस्तग़ासा भेजेगी या प्राइवेटली होगा। इसी तरह से 157(2) है ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसके तहत अगर पुलिस के इल्म में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाती है जो अनरिबर्टेबल है तो वो एक रपट लिख सकती है कि इस पर FIR दर्ज नहीं की जा सकती। अब दूसरी बात ये है कि झूठी या सच्ची FIR, ये बात दुरुस्त है कि FIR झूठी या सच्ची दर्ज हो सकती है, लेकिन हमारे कानून में 182 की सूरत में ज़ाब्ता फ़ौजदारी और PPC के तहत 182 के तहत एक कानून मौजूद है कि अगर कोई झूठी एविडेंस देता है, FIR दर्ज करवाता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है और उसकी भी सज़ा है। तो अगर हमारा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में 182 का इतलाक़ जिस तरह से होना चाहिए था, हर FIR के अंदर होना चाहिए था, वो मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पर लोग झूठी FIR दर्ज करवाने से डरते नहीं हैं। वो बरमला आके झूठ पर मबनी कहानियाँ बनाकर FIR दर्ज करवा देते हैं। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रफ़ाकत अपनी बीवी को मनाने में नाकाम होता है और उसके घर वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसको ससुराल वालों ने जलाकर ज़िंदा मार डाला। लेकिन जो CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें ऐसा ही लगता है मुबैना तौर पर जैसे रफ़ाकत ने खुद सोजी की हो। अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब तक हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया उस वक्त तक पुलिस इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। आने वाले वक्त में पुलिस की तफ्तीश में पता चलेगा कि क्या वो वाकई खुदकुशी थी या फिर उसे ज़िंदा जलाया गया। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।